بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. بڑا مسکرا کے جواب دے رہے. الحمدللہ. اوکے چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں طہارت کے مسائل میں، اور ٹاپک ہے ہمارا الغسل، یعنی غسل کے مسائل. غسل کس کو کہتے ہیں؟ نہانے کو. ٹھیک ہے. اچھا چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ جس کے بعد غسل کبھی فرض ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جس سے کرنے سے غسل مستحب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھیں گے کہ جس سے کرنے سے غسل جو ہے وہ سنت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب تک انسان پاک نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور دوسری کوئی بھی عبادات اس کی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پاکی کا احساس نہ دلا دے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ شروع کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 103 آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو. بیوی اور خاوند کی شرم گاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو الحمدللہ سادے الفاظ میں حدیث تھی یہ، اور نہیں سمجھنے جیسا کچھ نہیں ہے. کہ اگر سمجھیے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سیٹسفائی ہو یا نہ ہو، انٹر کورس ہو گیا نا، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمپلسری ان کو غسل کرنا ضروری ہے. دوسرا ایک مسئلہ دیکھتے ہیں یہاں پر. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو احتلام کے بارے میں پیچھے میں آپ کو بتا چکی. انشاءاللہ آگے بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو غسل کرنا چاہیے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا. آپ نے فرمایا، مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے بھی جو غالب آ جائے بچہ اسی کا مشابہ پیدا ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے ایک حدیث سے ہم بہت ساری جو ہے وہ باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو اس سے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے صحابیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی تھی. کیوں پوچھتی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بولیے. ویری گڈ. اصلاح کرنے کے لیے نا. سب سے پہلی بات علم حاصل کرنے کے لیے، اور صرف علم حاصل کر کے اپنے تک نہ رکھتے ہوئے بلکہ علم پر عمل کرنے کے لیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پتہ چل جائے اس پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ مسئلے کو دریافت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے.
फिर उसी के साथ साथ देखिए कि एक बात और साबित होती है इस हदीस से कि जो है वो औरत को भी यानी कि ख्वाब वगैरह में एहतिलाम हो सकता है, जिसको वेट ड्रीम कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई मसला औरत के साथ पेश आ जाए, अगर सुबह समझिए कि औरत उठी है और बिस्तर पे अपने यानी कि उसने बिस्तर पर या फिर अपने पैंट में या फिर जो भी उसने कपड़े पहनी हैं उस पर एक काउंटेबल अगर उसको लिक्विड जैसा कुछ फील होता है कि एक तादाद में अगर उसको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज जैसा, तो फिर उसको गुस्ल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें इस हदीस से जो है वो पता चल रहा है। अच्छा, फिर उसी के साथ साथ देखिए कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि मर्दों की तरह औरतों को भी इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। अक्सर लोगों की यानी कि ये मेंटलिटी होती है कि नहीं भाई, ऐसा एहतलाम तो शायद सिर्फ मर्दों को होता है, वेट ड्रीम सिर्फ मर्दों के साथ होता है, औरतों के साथ नहीं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो सोचे ज़रा, यहाँ पर एक अफसोस का मकाम है। जिसको ये बात नहीं पता थी उसकी लाइफ में सोचे कि ऐसे मौके कितनी दफ़ा आए होंगे कि इस तरीके से उसका वाइट डिस्चार्ज हो गया था कि उसको गुस्ल करना वाजिब था और उसने नहीं किया। कितने अफसोस का मकाम है, सोचिए ज़रा। तो इसलिए इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम जो है सही तरीके से उस पर अमल कर सकें। फिर उसी के साथ साथ देखें आप कि अच्छा, क्या ये चीज़ जागते हुए भी हो सकती है क्या? अभी देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे माहौल से गुज़र रहे हैं, ठीक है, कहीं आपने पोस्टर देख लिया, किसी कोई पिक्चर देख रहा है, कोई अगर कोई सीन देख रहा है और उसके ज़रिए अगर समझिए कि उसको अगर कोई ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो फिर उसको वज़ू करना ज़रूरी है। बात आ रही समझिए? यानी ये चीज़ें शायद कुछ लोग आप में से समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो। ये फीलिंग के साथ इसका ताल्लुक़ होता है कि अगर कुछ ऐसा डिस्चार्ज, आपने कुछ गलत चीज़ देखी, फहश चीज़ देखी और अगर कुछ डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपको वज़ू करना ज़रूरी हो जाएगा। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक में जो है इतनी, इस हदीस के ताल्लुक़ से इतनी थोड़ी सी मुझे बात जो है आपको कहनी थी। बस याद रखें आप कि यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि हाँ, औरतों को भी एहतराम होता है। यानी कि कभी कभी जब पूरी सेक्स करते हैं तो ये जब औरत का एहतराम अगर गालिब आ जाता है, देखिए एहतराम का ताल्लुक़ तो खैर नींद से ही है, लेकिन यहाँ पे ये बात आई है ना कि और कभी कभी देखिए कि बच्चा माँ के जैसा भी होता है ना, कभी बाप के जैसा होता है, कभी माँ के जैसा। तो ये डिपेंड किस पे होता है? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, जिसका नुत्फ़ा गालिब आ जाता है ना, फिर वो बच्चा उसके जैसा होता है, ठीक है, उसके मुशाबे होता है। चलिए, मसला नंबर 105 पे चलते हैं। मनी खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। पीछे देखिए कि मैंने आप लोगों को एक मसले पर बताया था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो तकरीबन मसला था मज़ी और मनी के टॉपिक पर, है ना। तो मज़ी क्या है? ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, ऐसे ही किसी को भी हो सकता है। लेकिन मनी क्या होता है कि ये एक ऐसा डिस्चार्ज होता है कि जिसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला बच्चे की तख्लीक करते हैं। ओके, स्पर्म जिसको कहते हैं वो हो गया, सेल स्पर्म जो होता है। तो ये पीछे बात हो चुकी है इस पर कि अगर ये खारिज होता है, मनी खारिज होने पर गुस्ल वाजिब होता है। यस, डेफिनेटली। देखिए, सेक्स करने के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसको मनी कहा जाता है, जो मर्द का होता है। ऊपर हमने हदीस में पढ़ा ना कि मर्द का जो नुत्फ़ा होता है वो सफ़ेद और गाढ़ा होता है। इस तरीके से हम फ़र्क कर सकते हैं। और औरत का कैसे होता है? पतला होता है और थोड़ा एकदम वाइट नहीं रहता है, हल्का सा उसमें से जर्द यानी थोड़ा सा रेडिश कलर, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो औरत हूँ, मैं मर्द का क्यों रखूँ? तो भाई कि ठीक है, इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे, आपका बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है चाहिए कि हम जो है तमाम जो है वो चीज़ों का नॉलेज रखें। अगर मेरे लिए वो काम करनी है तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, या फिर एज ए टीचर स्टूडेंट्स के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मसला नंबर 106 पर आप देखें कि गुस्ल जिनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वज़ू करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथ धोते, फिर नमाज की तरफ वज़ू करते, फिर गुस्ल फरमाते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टूड है, सबको समझ आ गया होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखिए बात करूँगी मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या हुआ करता था कि सबसे पहले वो हाथ धोया करते थे। क्यों क्यों क्या वजह हो सकती है जी? वेरी गुड। अगर ज़ाहिरी कोई निजासत हाथ पे लगी है तो उसके ज़रिए पानी गंदा ना हो जाए, पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल हमने बात की है, या वो यहाँ वहाँ लग के बर्तन गंदा ना हो जाए, पूरा पानी वेस्ट ना हो जाए। यू नो नाउ वी डे तो आप बोलोगे हमें तो ज़रूरत ही नहीं, ज़रा मैंने नल खोला फटाफट हाथ भी धो, इस्तिंजा भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सब हो गया। लेकिन देखिए कि हर जगह नल की सहूलत नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप किसी ऐसी जगह गई हैं, भाई नल नहीं है, कुएं से पानी निकाल कर आपको गुस्ल करना है, तो इतना तो हमें सेंस होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले जो है वो हाथ धोया करते थे, फिर उसके बाद जो है वो नमाज की तरफ वज़ू करके फिर गुस्ल फरमा लिया करते थे। और गुस्ल का क्या तरीका है इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है वो देखने वाले। ठीक है, चले उसके बाद आप चले कि मसला नंबर 107 पे चलें। यहाँ पे थोड़ी सी तफसीर जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे। गुस्ल जनाबत का मसनून तरीक़ा दर्ज जेल है। ओके, यानी कि यहाँ पर गुस्ल जनाबत, अच्छा जनाबत सबको क्लियर हो रहा है? जनाबत मीन्स बोलिए नापाकी, किस तरीके की नापाकी? यस, सोहबत जो होती है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बाद जो नापाकी होती है उसको जनाबत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक सबक हमारा इसके ऊपर था। तो चले इंशाल्लाह इस पर देखते हैं कि हदीस थोड़ी तवील है, बात भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जो है वो तवील करने वाले हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपने दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते, फिर नमाज की तरफ वज़ू करते। इसके बाद हाथ की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से जो है वो तर करते। किसको तर करते? सर के बालों की जड़ों को। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिए, मैंने क्यों दोबारा इसको कहा, तर करते। फिर इसके बाद देखिए 3 लप पानी सर पर डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते, आखिर में एक दफ़ा फिर दोनों पाँव धोते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, हाँ ये हो गई हदीस। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ हम जो तरीक़ा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि गुस्ल जनाबत किस तरीके से करना है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पर जो है वो किस तरीके का जो है वो, यानी कि गुस्ल का तरीका क्या जो है वो कुछ कमी बेशी के, कभी कहीं ज़्यादती कर दी जाती है, कभी कोई कमी कर दी जाती है, लेकिन एज़ इट इज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये तरीका देखा और उसके बाद जो है अब आप अपना कोई तरीका अगर शेयर करोगे तो कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा, दोनों में ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली। हम पूछेंगे इंशाल्लाह अभी, हाँ इसके बाद पूछते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ ना कुछ कमी बेशी पर, जैसे कि हमारे माशरे में कुछ बातें आम हैं कि पूरे कलमे पढ़ना चाहिए, है ना, है कहीं पर, क्योंकि बच्चे जब हमसे बात करते हैं ना कुछ और पूछते हैं, वो हमसे जाहिर जो है वो ज़िक्र करते हैं कि देखिए हम ऐसा ऐसा करते हैं, हमें घर में बताया जाता है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, फिर उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ है वो देखने में आया है। और देखिए कि तो यहाँ पर एक बात आप सुन ले कि गुस्ल जनाबत में कुछ चीज़ें जो है वो फ़राइज़ हैं और कुछ चीज़ें मसनून हैं। ठीक है, इसको इंशाल्लाह आज हम जो है वो क्लियर करेंगे, और इन दोनों में हमें जो है वो फ़र्क पता होना चाहिए कि भाई फ़राइज़ क्या है और सुन्नत क्या है, और ये जो है इंशाल्लाह इस पे हम जो है वो देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि फ़राइज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़राइज़ अगर आपसे छूट गया ना तो फिर आपका गुस्ल
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ़राइज़ को रुकन भी कहा जाता है, पिलर जिसको कहते हैं। आप एक इमारत खड़ी करी हैं, उसके 4 पिलर है, एक पिलर आप हटा दो तो वो इमारत खड़ी रहेगी आपकी? बस उसी चीज़ को आप यहाँ पर लेकर आएँ कि गुस्ल में से एक भी फ़राइज़ आपने छोड़ दिया ना, तो फिर आपका गुस्ल जनाबत हो ही नहीं सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट फ़राइज़। ठीक है, चलें। तो देखिए कि फ़राइज़ में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है। एनीवन नो व्हाट? ओके, वेरी गुड और वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो माशाल्लाह बारकल्लाह फ़ी कि आपको पता है। तो देखिए कि फ़राइज़ में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक ये कि नियत, और हमने देखा शुरू में बिल्कुल कि नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम है। नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब आप जो वो गुस्ल कर रहे हो तो वो आप जनाबत से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हो, आप हैज़ से पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हो, या कोई और मकसद है आपका जो है वो आप जो पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए कि जो भी गुस्ल आप कर रहे हो उसकी नियत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों नियत होना ज़रूरी है? शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप बग़ैर नियत के करते हो, आप पूरा दिन अपने ऊपर शावर लेते रहो, पाक नहीं हो पाओगे। ठीक है, अच्छा, सारा अमाल का सारा दारोमदार हमारे नियत पर होता। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इसमें? दूसरी चीज़ है कि सारे जिस्म पर पानी बहाना। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि सारे जिस्म पर आपको जो है पानी बहाना, ये 2 काम आपने कर लिया ना, पाक हो गए आप। ठीक है, ये 2 चीज़ कंपलसरी आपको करना ही करना है। फिर उसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ का ज़िक्र अल्लाह के रसूल ने और क्या किया कि बालों की जो जड़ों का ज़िक्र आता है ना, तो ये क्या है कि ये भी फ़राइज़ में आ जाता है। कैसे? बालों की जड़ फ़राइज़ में आता है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन स्किन से है। जड़ की बात हुई है, बाल की बात नहीं हुई। क्यों बाल की बात नहीं? क्योंकि देखिए हम जो हमारा स्किन फील करता है ना, वो गीला हो रहा है क्या, वो सूखा है, तो स्पेशली क्या है कि जड़ जो है हमारी वो तर होनी चाहिए, बालों का कुछ वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इसी के साथ साथ देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस तरीक़े से गुस्ल करते हो तो आपका गुस्ल हो जाएगा। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसी तरीके को अपनाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो जो है यानी इस तरीके को अपनाएं। अच्छा, देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा, तो अगर समझिए कि जो इस तरीके से नहीं करता है गुस्ल, गोया उसने क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का इनकार कर दिया उसने। ठीक है, चलिए, ये जो हमने अभी देखा ये तो क्या था? मसनून तरीका था। मसनून तरीका था। अब एक और तरीका है, उसको भी आप जो है यानी कि सुन लो तो आपको आसानी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। देखिए, अब और एक मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करना है? दोनों हाथों को धोना है। ठीक है, आपको हाजत हुई गुस्ल की, आप उठी, वॉशरूम में गई, दोनों हाथों को आप धो लें। ठीक है, ये हमारी कलाइयों तक जो होता है। उसके बाद आप क्या करें? इस्तंजा करें। ठीक है, इस्तंजा कर लें, दोनों हाथों को पहले धोएं, फिर इस्तंजा करें। फिर उसके बाद देखिए कि नमाज के जैसे पूरा वज़ू आपको करना है। नॉर्मली जैसे हम नमाज में वज़ू करते हैं ना, उस वज़ू को आपको उसी की तरह जो है वो पूरा वज़ू करना है। और वज़ू करने के बाद फिर देखिए कि अच्छा, यहाँ पर देखिए कि हमने ये हदीस में क्या पढ़ी कि आखिर में अल्लाह के रसूल एक दफ़ा पैर धो लिया करते थे। ठीक है, एक दफ़ा पैर जो है वो धो लिया करते थे। तो देखिए कि ठीक है, हमें जो है रिवायतों में ये चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। जैसे कि आप समझिए कि नमाज में आप ये जो अगर गुस्ल का जो आप वज़ू कर रहे हो उसमें आप मसा नहीं करते हो तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आप करो तो कोई हर्ज भी नहीं है। आपने अगर मसा कर भी लिया तो कोई हरज भी नहीं है। अच्छा, क्यों जो है पैर को लास्ट में धोने का हुक्म है? क्यों? क्योंकि देखिए आपने अगर वज़ू कर लिया, ठीक है, अगर बाद में आप और शावर ले रहे हो तो वो नहाते वक्त फिर छींटे वीटे आ जाते हैं, इसलिए लास्ट में एक दफ़ा ही पैर धो लो। ठीक है, वो भी मुनासिब तरीका है। फिर उसी के साथ साथ देखिए कि पूरा वज़ू आपने ले लिया, फिर उसके बाद जो है वो
پانی آپ کو جو ہے یعنی کہ ہاتھ میں لے کر ہے نا ایسا سر پہ ڈالنا ہے. ابھی تو الحمدللہ شاور اویلیبل ہے، یا آپ کہیں آپ کے جو کہ مگا وغیرہ ہوتا ہے وہ اویلیبل ہے. تو جب آپ یعنی پر سر پہ جب پانی ڈالو گے نا تو ہاتھ سے ڈالو. ہاتھ سے جب آپ سر پہ پانی ڈالو تو اپنے پوروں سے، ہم مالش کیسے کرتے ہیں تیل سے مالش کرتے نا، بس اسی اسٹیپ کو آپ لے لیں. اور نا پوروں کو گیلا کرنا یہ شرط ہے. بال گیلا ہوا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آپ، لیکن یہ اسکین آپ کی جو کھوپڑی جس کو بولتے ہیں نا وہ گیلا ہونا چاہیے، وہ تر ہونا چاہیے، بالوں کی جڑ جس کو کہا جاتا ہے. یس ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایسے ہی دیکھیں 3 لفظ سے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے پانی ڈالا ہاتھ سے. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے 3 دفعہ پانی ڈالا، یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ 3 دفعہ میں وہ سارا جو ہے گیلا ہو جائے آپ کی کھوپڑی، یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کریں آپ اچھے سے ہاتھ اپنے پوروں سے نا اس کو مساج کر کے سارا جگہ کو کیا کریں گیلا کر دیں. ٹھیک ہے سر. اچھا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ رائٹ سائڈ میں 3 دفعہ پانی بہائیں گے آپ کے جو باڈی پر، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو 3 دفعہ پانی بہانا ہے. اور اس طریقے سے آپ کی باڈی پوری جو ہے وہ تر ہو جائے گی. ایک بال ایک ناخن کے برابر بھی جگہ سوکھی بھی نہیں رہنا چاہیے، ادروائز آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے. اور لاسٹ میں 1 دفعہ آپ پیر دھو لیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی اسی وضو سے میں کیا، یعنی کہ میرے لیے کافی ہے یہ وضو، میں بعد میں اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو کر سکتی. انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ اگلے چیپٹر میں ہمارا یہ جو ہے وہ مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. ہاں اچھا ہاں کہ 3 مگا پانی ڈال رہے ہو تو یہ پاسبل تھوڑی نہیں. اچھا اب دیکھو کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا 3 دفعہ پانی بہانا یہ سنت ادا ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. سنت ادا ہو جائے گا، لیکن آپ پوری باڈی کو اور پانی سے بھی گیلا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہو گیا آپ کا غسل. اس کے بعد آپ صابن یوز کرو، شیمپو یوز کرو، نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غسل کے لیے شرط نہیں ہے کہ صابن رہے اور شیمپو رہے تو ہی غسل ہوگا، نہیں، ایسی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ بولیے. ٹھیک ہے. اوکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.